I have worked in railway, I have worked in state government, Jilla Parishad, I have worked in Lonavala Municipal Corporation. Thereafter, I have joined here in Mumbai Municipal Corporation. GIS क्या होता है? मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी लैंड पार्सल्स है विलेज वाइज या वार्ड वाइज, तो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन एक ही एट्रीब्यूट डेटा के फॉर्म में, टेबल फॉर्म में भरी जाती है। आप EODB का एकदम सिंपल वे में मतलब समझा सकते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अपन ने EODB कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया? 2014-15 से ये स्टार्ट हो गया। 2014-13 में इंडिया का EODB रैंकिंग क्या होगा? वो 184 कुछ था। और अब अपन कहाँ पहुँचे? TDR जो है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, वो भी हमने ऑनलाइन अवेलेबल करके दे दिया है। देखा जाए तो जो भी अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो काफ़ी एज्ड होते हैं, तो एक ये हो गया कि उन सबको ये कैसे यूज़ कराया, और दूसरा कि ये आपने इतने सारे लोगों तक कैसे पहुँचाया। वो स्टार्ट करने से पहले का भी एक इतिहास है। Today's episode is powered by Absolute CX. Tired of juggling multiple dashboards for sales, marketing, and channel partners? Introducing Absolute CX, the ultimate integrated customer experience solution. This platform of platforms unifies all your operations into a single streamlined dashboard, boosting efficiency and delivering quality leads. As the world's only AI marketing tool compatible with any CRM and ERP, it is the trusted choice of India's top developers. Transform your business today. Click the link in the description below and experience seamless integration today. Hello everyone. So here we are back with another episode of Speaking Real Estate podcast. Today with us we have Mr. Sanjay Nirmal sir, who is an engineer and has been working with the MCGM for about 24 years. He's the one responsible for the back-end work for ease of doing business for the real estate industry, and has brought down the ranking of India's construction EODB ranking from in hundreds to 2 digits in a short period of time, and has been also responsible for all the work of Auto DCR website and what all work has been involved for bringing or converting the real estate industry from a paperwork intensive industry to a paperless digital industry today. Hello sir. हेलो हेलो। आपको आज यहाँ पर लाते हुए बहुत खुशी हो रही है, एंड आज की बातें सारे EODB, ऑटो DCR और एस्टेट प्लॉट्स के बारे में कर बहुत कुछ सीखने और जानने भी मिलेगा. It is a very good thing that I can able to share the more informations to all contributors who are involved in construction industry, sir. Thank you so much for coming here today. Yes, thank you very much for calling me. Sir, normally we start with the education journey of our guest, followed by career journey of our guest. तो आपका education क्या था? Sir, basically prior to joining this municipal corporation, I have worked in railway, I have worked in state government, Jilla Parishad, I have worked in Lonavala Municipal Corporation, and thereafter I have joined here in Mumbai Municipal Corporation. My academic background is I have done initially diploma in civil engineering, then I have done AMI in civil engineering, then I have done B civil engineering, then I have done LLB, then I have done masters in information management. So like this I have possessed all these academic qualifications. Sir, according to you, has education played a very big role in your career, or the practical experience has played a bigger role in your career? Both things are involved. Basically, academic is must because it gives the initial strength by which we can able to perform in the ongoing professions. But there is a large role played, that is the opportunity. During my work tenure, so I got the opportunity to work. That initial stage I have worked in ward, and thereafter I have joined in building permission department, and so like this I have got the opportunities, and by considering the academic background,
So I can able to transform the academic things in the natural course of the action and professions. सर आपने इतनी सारी एजुकेशन करी, फिर बाद में आपका करियर जर्नी कैसा रहा? आपने कैसे किधर किधर आपने काम किया और फाइनली MCGM में कैसे पहुँचे? In railway while working, how the central government works, and so that I have got the experience. I have worked for 1.5 years somewhere in Central Railway. Thereafter, I have joined in Lonavala Municipal Corporation. There also I have worked 1.5 year, but there I have started the private contracting and survey contracting. Like this, I have started some career over there. And thereafter I shifted it in the state government Jilla Parishad. So like this, there also I have then 1.5 year, and then I have joined in Mumbai Municipal Corporation as a junior engineer in A Ward office. Initially I was working as a maintenance engineer, and thereafter I got the promotion, and I posted as a sub-engineer in Building Proposal Department, Western Suburb 2. So like this, my initial journey was initiated. अभी MCGM में आपने एज अ सब इंजीनियर इन बिल्डिंग प्रपोजल्स आपने ज्वाइन किया, देन व्हाट वाज द कंडीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने तब ज्वाइन किया था? क्योंकि आपने 24 इयर्स हो गए जब ज्वाइन किया था, तभी ऑनलाइन तो मेरे ख्याल से कुछ था ही नहीं। तब कैसा सिचुएशन था MCGM में, और तब जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन या वर्किंग प्रोसेस होता था वो कैसा होता था रियल एस्टेट इंडस्ट्री का? बेसिकली मैं जब पहला मेरा पोस्टिंग हुआ बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में एज अ सब इंजीनियर सर्वे करके, तो मैं देखता था कि बड़े बड़े फाइलें मेरे पास आती थी और वो ओपन करके उसमें देखना पड़ता था ब्लॉक प्लान, लोकेशन प्लान, वेदर इट इज़ दैट प्लॉट इज़ अफेक्टेड बाय द रोड वाइडनिंग, एंड उसका डिमार्केशन देना, उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन है उसके बारे में इनपुट दे देना। तो ये सब लगता था, तो ये रिपीटेटिव वर्क मुझे लगता था। तो दैट टाइम व्हाट आई हैव डन, whatever the data available with the survey department, I compiled all datas and prepared once. I got prepared it from the software agency, one application, and through that application, if we put the CTS number and village, we can able to find out how much area is affected through the road widening, whether it is affected by the road widening or not, whether that plot land parcel have issued any demarcation earlier. So like this, some informations we can easily collect it out. So my intent that point of time was that कि ये सब हम लोग information अगर easily available करके तो हमारा काफ़ी सारा time बच जाता है। तो that time chief engineer Shintre sir was there. So I expressed this my views with the Shintre sir. और सिंद्रे सर को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि यस ये इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और उन्होंने मुझे रिसोर्सेज भी अवेलेबल करके दे दिया। तो मैं पहले तो स्कैनिंग का तो इतना ये नहीं था, तो मैं फ़ोटोग्राफ्स लिया करता था जो अर्लियर अप्रूव्ड प्लान्स है उसके, और उसके रिपोर्ट्स के फ़ोटोग्राफ्स निकाल के वो फ़ोटोग्राफ्स में इसमें अटैच कर देता था। जो भी प्लॉट लैंड पार्सल की इंफॉर्मेशन है उसके साथ में अटैच करता था। और जब भी कोई ऐसे प्रपोजल आ जाते थे तो मैं ये सब डेस्कटॉप एक्टिविटी थी, डेस्कटॉप पे ही ये सब सेव करके रखता था और उसमें से डिस्प्ले होता था। फिर बस सर को मैं बोलता था कि इसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशन बना के अगर कोई सर्वर में डाल दे, वेबसाइट पे डाल दे, वेबसाइट बना के डाल दे उसमें, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सर ने मुझे तभी बताया कि तुम इनिशियली ये स्टेज पे करो, फिर इसका अगर ईजिली एक्सेसिबल होता है तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं मास लेवल पे। तो ये हमारा मतलब कांदिवली बिल्डिंग प्रपोजल का एक्सपीरियंस रहा, और उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हम लोग ने इम्प्लीमेंट किए। रिकॉर्ड, जैसे कि रिकॉर्ड कुछ अलग अलग ढंग से था तो उसका प्रॉपर इंडेक्सिंग कर लिया। इंडेक्सिंग के बाद में जो जो लैंड पार्सल के ऊपर प्रपोजल है, अर्लियर अप्रूव्ड प्रपोजल है, उसके फाइल्स के नंबर्स है, ये सब हमने
वो सॉफ्ट फॉर्म में डाल दे एज ए डेटा एंट्री। और हमको जब भी रिक्वायरमेंट था तो पहले तो ये रजिस्टर में बंद था, तो ये रिक्वायरमेंट होगी तो तुरंत हमें थ्रू सॉफ्टवेयर डिस्प्ले हो जाता था, तो इससे टाइम का भी बचने लगा। तो इनिशियल में ये हमने एक्सरसाइज किया और इसका शुरुआत बिल्डिंग प्रपोजल सर्वे ये डिपार्टमेंट कौन में से ऐसा हो साल गया। में शुरुआत हुई थी? ये 2001-2 की बात है सर, अच्छा, 1-2-3 की बात है। तो तभी हमने ये किया। तो 3 से 2003-4-5 तक था मैं वहाँ पे। तो उसके बाद में मैं SRA में ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर वहाँ पे आगे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। बराबर। यस सर। SRA के बाद SRA के बाद में मैं डेवलपमेंट प्लान डिपार्टमेंट में वापस ट्रांसफ़र हो गया। तो डेवलपमेंट प्लान में मुझे जो GIS के बारे में जो चल रहा था वहाँ पे काम, तो वो देखने को मिला। तो मुझे पूरा के पूरा वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसका पूरा मेरे को बोला गया ये सब करने के लिए। सो जो DP रिमार्क्स का पोर्शन था, जो पहले DP रिमार्क्स मतलब लैंड पार्सल के ऊपर कोई रिजर्वेशन है, कोई रोड वाइडनिंग है या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो उसका एक रिमार्क हुआ करता था। तो वो रिमार्क्स लेने के लिए एप्लीकेंट हमारे ऑफिस में आ जाता था। तो हम लोग, हमारे ड्राफ्ट्समैन थे, ट्रेसर लोग थे, ये उसके ऊपर कितना फीस लगेगा वो इतना उसका एरिया और नंबर ऑफ CTS नंबर देख के वो बता देते थे। और वो रिमार्क्स वो एक पर्ची बना के, एक प्रिंटेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रहता था, वो फॉर्म भर के वो सबमिशन कर लेते थे। और उसके ऊपर वो जो डिमांड नोट उनको इशू किया जाता था, और वो जाके नीचे CFC में काउंटर रहता था, वहाँ पे पैसा भर के वो लोग उसके रिमार्क्स ले लेते थे। तो इसमें एक रिमार्क लेने के लिए, डेवलपमेंट प्लान का रिमार्क लेने के लिए 10 से 12 दिन तो उनको लगते ही लगते थे, और 4-5 चक्कर तो उनके हो जाते थे। एक बार कितना पैसा लगेगा, एक बार फॉर्म सबमिशन के लिए, इसके बाद में पैसा भरने का, डिमांड नोट सबमिट करने का, वो फिर उसके बाद में हमारे ट्रेसर ड्राफ्ट्समैन लोग उसके ऊपर बनाते थे और बाद में साइन होके इश्यू होता था। तो 10-12-15 दिन तो इसमें डेफिनेटली लग जाते थे एक रिमार्क लेने के लिए। और अब ये कितने टाइम में होता है? अभी तो यू जस्ट फिल द इंफॉर्मेशन एंड गेट द रिमार्क, पे ऑनलाइन एंड गेट द रिमार्क, इंस्टेंटली है, हो जाता है। रियल टाइम में हो जाता है। GIS क्या होता है? सर इसमें क्या है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी लैंड पार्सल्स है विलेज वाइज या वार्ड वाइज, तो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, जो रेफरेंस इंफॉर्मेशन वो लैंड पार्सल के बारे में एक ही एट्रीब्यूट डेटा के फॉर्म में, टेबल फॉर्म में भरी जाती है। और उसका जो लोकेशन है वो भी, मतलब शेप भी उसका आइडेंटिफाई हो जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर हमने लिया था, और वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो सब इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में हमने भरी थी एज ए इनपुट पैरामीटर। तो जब भी हमको कोई लैंड पार्सल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो जैसे CTS नंबर, विलेज, वार्ड, ये इंफॉर्मेशन बेसिक पैरामीटर्स डाल दो, तो सिस्टम डायरेक्ट आपको उसका रिजर्वेशन कौन सा है, इसका एरिया कितना है, अफेक्टेड प्लॉट्स कहाँ कहाँ है, ड्रेनेज लाइन कहाँ पे, सीवेज लाइन कहाँ पे, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पूरे की पूरी आ जाती है। अगर आज किसी को कोई भी लैंड पार्सल या कोई भी प्लॉट का डिटेल्स चाहिए, तो एक नॉर्मल सिटीजन के लिए उसको क्या करना रहेगा? कौन सी वेबसाइट पे जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए? हमारा एक वेब पेज है https://dcr.mcgm.gov.in। तो ये वेबसाइट पे एक वेब पेज बनाया हुआ है। ये वेब पेज में DP रिमार्क्स का एक आइकन है, तो उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको अगर 91 का डेवलपमेंट प्लान रिमार्क चाहिए तो 91 के लिए क्लिक करिए, और 2034 का रिमार्क चाहिए तो 2034 को क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, CTS नंबर, विलेज, वार्ड, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सिस्टम जनरेटेड रिमार्क आ जाता है। यू विल हैव टू पे द फीस एंड डाउनलोड द रिमार्क इन PDF फॉर्म। सो ये इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली आपको अवेलेबल है। अंडरस्टूड। ये पूरा ऑटो DCR का ही एक छोटा सा पार्ट है। हाँ, ये एक वन ऑफ द
ancillary requirement for the AutoDCR application. Yes, sir. अभी EODB पर डिस्कशन करते हुए आप EODB का एकदम सिंपल वे में मतलब समझा सकते हैं? EODB का बेसिकली ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, जो भी सिटीजन है, जो भी ओनर है लैंड पार्सल का, उनको उनका प्लॉट एक्सप्लॉइट करने का, डेवलप करने का पूरा के पूरा राइट है. और ये करते हुए उनको ये बेसिक पूरा पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशंस के लिए, ये अप्रूवल के लिए मुझे ज़्यादा अथॉरिटी के साथ में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए. तो वो एक बार अगर कोई चीज़ के लिए अथॉरिटी के साथ इंटरेक्ट करता है तो दैट बिकम्स वन प्रोसेस. सेकंड टाइम वो पेमेंट के लिए आता है तो दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस. ये नंबर ऑफ जो प्रोसेसेस है वो हमने रिड्यूस करके उसका इंटरेक्शन कम कर दिया. ये एक तो रियल टाइम जनरेशन हो जाता है, या तो फिर ये सिस्टम जनरेटेड है तो या तो अथॉरिटी के पास सबमिशन हो जाता है और अथॉरिटी उसके साथ में ऑनलाइन कम्युनिकेट करती है तो उसके ऊपर फर्दर अप्रूवल्स हो जाता है. सो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स हमने रिड्यूस किया, नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड वो हमने रिड्यूस किया, और जो क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन है, या माने कि हमारे पास में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स था, जो लेवल ऑफ अप्रूविंग रहता था अथॉरिटी में भी, जैसे कि सब इंजीनियर लेवल है, उन्होंने क्या करना चाहिए, असिस्टेंट इंजीनियर है, उन्होंने क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने क्या करना चाहिए. तो हर एक का हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया और उसके ऊपर से अप्रूवल हो जाता है. तो ये ईजीनेस हमने कर दिया सो दैट सिटीजन्स को और कॉन्ट्रीब्यूटर्स को हमारे पास बार बार आने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग इजीली उनको उनकी रिक्वायरमेंट डिलीवरी कर पाते हैं. तो दैट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अपन ने EODB कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया? बेसिकली 2014-15 से ये स्टार्ट हो गया. उसके पहले तो यस, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उससे पहले भी कर रही थी, बट उसमें इतना हमारा डेडिकेशन था नहीं, या तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे. तो हमने जैसे कि DP रिमार्क्स बोला, हमने सिस्टमाइज किया था उसको, बट ये कंप्यूटराइजेशन किया था उसको. या तो हम पुराने डॉक्यूमेंट से वो स्कैन करके हमने अवेलेबल करके रखा था हमारे पास, लेकिन ये तो मतलब ये था कि ये एंसिलरी यूजेज जो रिक्वायरमेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ये पहले कर रहे थे हम लोग, बट इसको इतना स्पीडअप नहीं था. लेकिन 2014 के बाद में इसको हमने ज़्यादा स्पीडअप कर लिया. तब 2014-13 में इंडिया का EODB रैंकिंग क्या होगा? वो 184 कुछ था, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था. 190 कंट्रीज में हमारा उतना रैंक था. 184 यानी लास्ट 7th थे अपन. यस. और अब अपन कहाँ पहुँचे? अभी हम कंस्ट्रक्शन परमिशंस का जो पैरामीटर है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक जो रैंकिंग करती है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, तो वो 190 कंट्रीज को करती है और डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर देयर. कुछ 12-15 पैरामीटर्स है, उसमें से कंस्ट्रक्शन परमिशन एक पैरामीटर है. तो कंस्ट्रक्शन परमिशन जो हम लोग डील कर रहे थे, तो उसका जो रैंकिंग था वो अभी जो रैंकिंग है वो 27 है. लेकिन अगर कोविड पीरियड के बाद में अगर रैंकिंग हो जाता था तो हम लोग एक सिंगल डिजिट में आ जाते थे. अभी हम 2 डिजिट में है. तो हमारा टारगेट ये था, हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी टारगेट ये था कि हम सिंगल डिजिट में आ जाए. इसके लिए हम लोग काफ़ी सारी कोशिश कर रहे थे सर. थोड़ी सालों में सिंगल डिजिट में भी अपन आ जाएंगे. और आप हमें ये बता सकते हैं कि जैसे EODB में नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, तो 2014 में जब अपन ने उस पर फोकस कॉन्सेंट्रेट करके नंबर ऑफ प्रोसीजर्स कहाँ से नंबर से कितने कम कर दिए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ डेज जो लगते थे परमिशंस में वो कितने से कितने कर दिए, और 2-3 जो पैरामीटर्स जो मेनली यूज़ होते हैं, क्राइटेरिया जो यूज़ होते हैं डिसाइड करने के लिए रैंकिंग, जिसने हमारी 194 से 27th पर ला दी है.
तो आप वो नंबर्स बता सकते हैं कि हम यहाँ पर थे और हमने यहाँ पर ला दिया। बेसिकली क्या होता है, वर्ल्ड बैंक जो मैप करती है तो उसका मैपिंग का प्रोसीजर होता है। तो वो एक तो कंट्रीब्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कर लेते हैं, या तो अथॉरिटी के साथ डिस्कस करके बात करके वो रैंकिंग करते हैं। और दूसरा, मार्केट में जो चल रहा है उनको जो ऑब्जर्व हो रहा है कॉमन सिटीजन्स की तरफ से, 2-3 उसके उनके मेथोडोलॉजी है। बाय दैट प्रोसीजर दे डू द रैंकिंग। तो उसमें 4 पैरामीटर बेसिकली होते हैं। एक तो नंबर ऑफ प्रोसीजर कितना है, कितना टाइम लगता है कोई अप्रूवल करने के लिए, जैसे कि प्लीन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है या आईओडी है या ओसी है, उसके लिए टोटल कंस्ट्रक्शन लाइफ साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है। तो वो पूरा अप्रूवल लेने में, तो वो पूरा है ना, वो मैप करते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोसीजर्स, टाइम रिक्वायर्ड है, उनका कॉस्ट कितना लगता है, मतलब अथॉरिटी को कितना पैसा देना पड़ता है, तो वो एक देखा जाता है। और चौथा एक होता है तो क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन, मतलब हम जो अप्रूवल दे रहे हैं, जिस रेगुलेशन के तहत ये एप्लीकेशन अप्रूवल दिया जा रहा है, तो वो अप्रूवल्स क्या क्वालिटी का है। तो उसके लिए कुछ 15 मार्क रखा करते थे। तो इनिशियली से फ्रॉम इनिशियल स्टेज जो उसका जो मार्क्स था, वो अपने को तो पूरा 12 मिलता था, क्योंकि अपना रेगुलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। तो रेगुलेशन तो एकदम क्वालिटी है अपना, तो उसका पहले से ही अपने को आउट ऑफ 15-12 मार्क मिलता था। लेकिन टाइम अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने मैप किया था 198 डेज, मतलब सबमिशन से लेके ऑक्यूपेशन तक हमारे एक आधा प्रोजेक्ट के लिए अगर टाइम निकाला जाए, जब अप्लाई करता है और उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो वो 198 डेज था। इतना ह्यूज टाइम था। तो ये टाइम हमने रिड्यूस कर दिया। और नंबर ऑफ प्रोसीजर्स 43 या 42 प्रोसीजर्स उन्होंने मैप किए थे 2014-15 में। हालांकि उससे ज़्यादा प्रोसीजर्स थे हमारे, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीब्यूटर और इनके साथ में इंटरेक्ट करके उनको जो समझ में आया था, वो उसने रैंक किया था 42। तो मुझे पता है कि लोग मतलब हम लोग देखा करते थे कि एक एक साल लगता था एक प्रोजेक्ट कंप्लीट अप्रूवल लेने के लिए, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के। तो ये पूरा के पूरा रिड्यूस किया हमने, और नंबर ऑफ प्रोसीजर 42 थे और 198 टाइम पीरियड उन्होंने एक मैप किया था। और क्वालिटी ऑफ रेगुलेशंस के लिए हमें मार्क्स मिला था 12 मार्क कुछ। तो इस तहत और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो था हमारा, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का, उसका 25% 25% पेमेंट्स अथॉरिटी को देना पड़ता था। तो ये पूरा है ना सिचुएशन था जब हमने इनिशिएट किया था। और रैंक हमारा था 183 कुछ था, 83। तो इससे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और अब हमने कितने नंबर ऑफ प्रोसीजर्स पे आ गए और कितने टाइम में अप्रूवल आ जाता है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना बेनिफिट हुआ है? तो इससे डेफिनेटली कैसा है कि जब हम अप्रूवल करते हैं, तो अप्रूवल में हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि एंड यूजर पे इसका इफेक्ट होता है। और अथॉरिटी को ही जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा डिले हो जाता है अप्रूवल से, तो डेफिनेटली इसका कॉस्ट, इसका रिफ्लेक्शन जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर आ जाता है। तो ये सिंस वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ इंटरेक्शन रिड्यूस हो गए और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट किया, तो अथॉरिटी कंट्रीब्यूटर्स को परस्यू करने के लिए कोई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उनको इन्फॉर्मेशन राइट टाइम में आ रही है। तो उनके जो एंड यूज़र है, मतलब जो भी कस्टमर्स है, उनको वो दिखा पा रहे हैं कि देखो ये फाइल आपका ये प्रोसेस में यही पे है। और हम लोगों ने बेसिकली ये अप्रूवल के साथ साथ हमने ये भी कर दिया कि उसके वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफ्स अपलोड करने के, तो कंट्रीब्यूटर जो उसके जो कस्टमर्स है उनका भरोसा इतना बढ़ गया। तो इसकी वजह से जो डेवलपर्स है, डेफिनेटली उनके प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों का एश्योरेंस बढ़ गया, बिलीव बढ़ गया, तो उनको पेमेंट आना शुरू हो गया। और इसकी वजह से
डेवलपर को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ, क्योंकि इन टाइम कंस्ट्रक्शन अप्रूवल दे दिया, इन टाइम उनको कस्टमर मिलने लगे और ट्रांसपेरेंसी भी लोगों को अवेलेबल हो गई। तो इससे डेवलपर को काफ़ी सारा बेनिफिट हो गया। नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं? आज के रैंकिंग में हमारे नंबर ऑफ प्रोसीजर जो है वो 10 प्रोसीजर है, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल गेटिंग द अप्रूवल्स इज 45 डेज है। और ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है आपको वेबसाइट के ऊपर डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा। तो हम आईओडी कितने दिन में देते हैं, हम फर्दर सीसी कितने दिन में देते हैं, ऑक्यूपेशन कम बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट कितने दिन में देते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। सो यू कैन एबल टू सी दैट थिंग आल्सो। तो आज 10 साल में जो EODB इम्प्लीमेंट हो रहा है, उससे नंबर ऑफ प्रोसीजर्स 194 से 45, नंबर ऑफ डेज 194 से 45 हो गया, नंबर ऑफ प्रोसीजर्स 45 से 10 हो गए, और काफ़ी सारा फ़ायदा डेवलपर्स और काफ़ी सारे सिटीजन्स को हुआ है। आगे MCGM का क्या विजन है, प्लान है EODB को लेकर? अभी जो पुराने फाइल्स है वो पुरानी फाइल्स हमने स्कैन करके लोगों को अवेलेबल करके दे दिए है। जो ये हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्ट हो गया 15/5/2015 से शुरू हो गया, और ईच अप्रूवल्स मतलब आपको चेंज ऑफ यूज़र भी करना है, या आपको कोई फ्लैट अमालगमेशन करना है, कभी कोई रिन्यूएशन करना है, तो उसके भी परमिशंस हमने, टोटल परमिशंस आर ऑनलाइन। ऑल अप्रूवल्स आर अवेलेबल for the citizen to view at any point of time। जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो क्लियरली हमने बता दिए है कि अगर आपको चेंज ऑफ यूज़र करना है, या डेवलपमेंट परमिशन लेना है, या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसके पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे नोटिफिकेशंस जो है मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नोटिफिकेशंस है, वो नोटिफिकेशन भी हमने अवेलेबल कर दिए है हमारे वेबसाइट के ऊपर। और ऐसा ही नहीं है क्या खाली ऊपर, हर एक चीज़ का मैनुअल्स दिया हुआ है, हर एक चीज़ के वीडियो क्लिप्स जो बनाए हैं वो भी हमने अवेलेबल करके दिया है, और हर एक एक्टिविटी को टाइम कितना लगता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो everything whatever required for getting the permissions are made available through the web page, and तो ये एकदम ईजीनेस हमने अवेलेबल करके दे दिया है। तो इससे काफ़ी सारा फर्क जो है लोगों को दिखने को मिल रहा है। आगे जो हमारा टारगेट है वो काफ़ी सारा बड़ा है। आप लोग मतलब जो भी डेवलपर्स है वो अप्लाई करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि प्रोजेक्ट के या लैंड पार्सल के बारे में, या कितना FSI मिलने वाला है, कौन से रेगुलेशन से ये अप्रूवल सबमिशन करना चाहिए, और ये वेदर इट इज़ अप्रूवेबल और नॉट, कुछ कंसेशंस जो रिक्वायर्ड है वो कंसेशंस उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसे कितने प्रपोजल्स है उसके बारे में अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। तो ये इसके लिए हम लोग AI यूज़ करने का सोच रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो इनपुट पैरामीटर है वो आएगा, जैसे कि रोड विड्थ कितना है, प्लॉट एरिया कितना है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग टेनामेंट, अगर रीडेवलपमेंट का बिल्डिंग है तो एग्जिस्टिंग टेनामेंट कितना है, वो हर एक टेनेंट का एरिया कितना है, ये सब चीज़ें हैं ना, ये एज ए इनपुट पैरामीटर हम लोग एप्लीकेंट के पास से ले लेंगे। तो ये इनपुट रिव्यू हो जाएगा, वो अर्लियर कितने प्रपोजल वो एरिया में, वो जोन में अप्रूव हुए हैं, तो इसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि ये वेदर दैट पर्टिकुलर रिवर रिक्वायरमेंट, और कितना आपको FSI मिलेगा, कितने फ्लोर तक बिल्डिंग बनेगी, कितना ओपन स्पेसेस इसमें मिल जाएगा डिफिशिएंसी अप्रूवल, कितना कॉस्ट लगेगा इसके ऊपर, डेवलपमेंट अथॉरिटी को कितना पैसा देना पड़ेगा, ये इसके बारे में पूरा के पूरा इंफॉर्मेशन जो AI यूज़ करके हम अवेलेबल करके दे देंगे सिटीज, ये नॉर्मल ओनर्स को, डेवलपर को। तो इससे काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो
those professionals who are aware about these facts, those only can able to define exactly what the cost required and whether the project is approvable or not. So if ये हम लोग अवेलेबल करके दे देंगे तो नॉर्मल बंदे भी ये बता पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट अप्रूवेबल है या नहीं है, और टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा, और कहाँ तक हम लोगों को, जैसे कि ओपन स्पेस डिफिशिएंसी हम लोग अगर बढ़ा रहे हैं तो इसका कितना पैसा लगेगा, अगर कम हो रहा है तो उसमें कितना पैसा हो लगेगा। तो ये प्रोपोर्शनेटली ही कैन एबल टू डिफाइन कि मैं कितना फ्लोर से ऊपर फ्लोर प्लेट की साइज वेरिएशन करे या ओपन स्पेसेस उतना रखे। इस ढंग का हम लोग एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। होपिंग दैट ये सब बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए और इससे काफ़ी सारे डेवलपर्स और पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का काफ़ी फ़ायदा रहेगा। अब आपने जब MCGM ज्वाइन किया था तब शायद MCGM की वेबसाइट भी नहीं थी, ना ऑटो DCR का कोई वेबसाइट था, और आज कितनी सारी अप्रूवल्स और कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो वो इतनी एक्सेसिबल और इजी हो गई है। तो आप अगर फुल जर्नी बता सकते हैं कि ये कहाँ से डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या क्या माइलस्टोन्स थे आपके लिए कि जब ये टास्क अचीव हो गया तब काफ़ी अच्छा अचीवमेंट था गवर्नमेंट के लिए और पूरी टीम के लिए, और साथ ही साथ आज अपन किधर पहुँचे और उसके भी फ्यूचर गोल्स ऑटो DCR को लेकर क्या हो गए। जब कोई प्लॉट में कोई अप्रूवल हुआ है, कोई अर्लियर फाइल्स है, तो उसमें क्या क्या अप्रूवल्स हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए भी वो लोगों को किसी नोन पर्सनैलिटीज़ को अप्रोच होना पड़ता था। वो फाइल नंबर निकाल के हमारे रजिस्टर में देख के वो फाइल निकाल के फिर उसको, वो फाइल भी ऐसा था कि कुछ पेपर्स उसके डिटोरेट हो गए थे, हुए थे, तो वो सब देखना पड़ता था। तो काफ़ी सारा टाइम लगता था उसमें, और उसके मैन इफर्ट्स भी लगते थे, और जिसको वो बोले वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए रहता था कि मैं हर एक मतलब नॉन इंफॉर्मेटिव बंदा है या तो एकदम नया बंदा है वो काम के लिए लगा है, वो भी नहीं होता था, क्योंकि वो उसके जानकार होना जरूरी रहता था पहले। तो ये सब चीज़ें पहले थी, तो इसको पूरा के पूरा सीज हो गया। अभी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप खाली CTS नंबर, विलेज, वार्ड डाल दीजिए। यू कैन एबल टू सी दैट फाइल, ईच डॉक्यूमेंट्स, ईच नोटिंग, ईच रिमार्क्स, वो डायरेक्टली सिटीजन सर्च पे अवेलेबल है। सो यू कैन डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे चले जाओ, सिटीजन सर्च को क्लिक करो, उसमें फाइल नंबर और ये डाल दो, तो यू कैन एबल टू सी द फाइल। उसके फोटोग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे आपको, उसके सर्टिफिकेशंस, वीडियो क्लिप्स देखने को मिल जाएंगे। इवनली अगर कोई फाइल में किसी ने रेफरेंस किया है कोई नॉन एलिमेंट या, तो वो उसकी भी इंफॉर्मेशन पता चलेगी आपको कि यस इसने ये किया, इन्फ्लुएंस किया है या कुछ अप्रूवल प्रोसेस में ये हुआ है। तो ये चीज़ें भी हमारे पास मैप हो गई है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने अवेलेबल करके दे दी है अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये अभी तक और तभी की अगर पोजीशन देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारा वेरिएशन हमें को देखने को मिल जाएगा। आगे की क्या सोच है इसको लेकर? हमने जो वेब पेज बनाया हुआ है ऑटो DCR का, तो इसमें ये रिलेटेड जो अप्रूवल के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि रेगुलेशन कौन सा है, नोटिफिकेशंस क्या है, अर्लियर अप्रूवल्स कौन से है, उसके लैंड पार्सल के DP रिमार्क्स क्या है, वीडियो क्लिप्स अवेलेबल करके दिया है, और सिटीजन सर्च है, इसमें ओल्ड फाइल्स दिखते हैं, डैशबोर्ड्स अवेलेबल करके दिया है। तो डैशबोर्ड्स में हम पूरे देख पाएंगे कि डेवलपमेंट कौन से सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है, कौन से जोन में ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमें पता चलेगा। और अगर कोई कंसल्टेंट चाहिए कोई डेवलपमेंट करने के लिए, तो उनकी लिस्ट हमने अवेलेबल करके दिए है, तो कंसल्टेंट भी हमें पता चलता है, उनके फ़ोन नंबर्स अवेलेबल है। और रिसेंटली हमने देखा है कि
TDR जो है, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट, वो भी हमने ऑनलाइन अवेलेबल करके दे दिया है। तो उनके लिस्ट भी अवेलेबल करके दिए, जो भी मतलब अगर TDR परचेस करना चाहता है कोई, तो उसकी लिस्ट भी अवेलेबल करके दिए हैं। और हम आगे चल के ये TDR का जो मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल एज ए कम्युनिटी करके मार्केट में लेके आने वाले हैं। तो ये भी इसके ऊपर बैकएंड में काम चल रहा है। तो ये सारे मतलब जितना ईजनेस हमें देना है सिटीजन्स को, कंट्रीब्यूटर्स को, तो ये हमने अवेलेबल कर दिया। जो स्पेशली फॉर द न्यू प्रोफेशनल्स, वो ये फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा है। और हम अपेक्षा भी कर रहे हैं, हमने उनके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए हमारा वेबसाइट है, फेसबुक है, ट्विटर अकाउंट है। तो इसमें भी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे कि MCGM कंस्ट्रक्शन परमिट हमारा फेसबुक पेज है, तो इसमें भी हम लोगों के पास से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, और इससे हम लोग और इम्प्रूव करना चाहते हैं, और भी इम्प्रूव्ड सर्विसेज अवेलेबल करके देना चाहते हैं सिटीजन्स के लिए। जो स्क्रूटनी मॉडल है हमारा, वो 2D स्क्रूटनी मॉडल है, जिसमें CAD में ड्राइंग सबमिशन होता है, और उसका जो स्क्रूटनी है बेस्ड ऑन द रेगुलेशन रिक्वायरमेंट, वो एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। आप CAD ड्राइंग सब अपलोड करो सिस्टम में, तो आपको ये अप्रूवेबल है नहीं है, कितना बिल्टअप एरिया है, कितना FSI कंज्यूम्ड है, ये सब इंफॉर्मेशन, रूम के साइजेस जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं है, फ्लोर हाइट बराबर है या नहीं है, फायर के रिक्वायरमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका ड्राइंग है या नहीं है, इसका स्क्रूटनी मॉडल हमने डेवलप किया है, वो लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग 3D मॉडल भी 3D मॉडल का भी प्रोविज़न किया है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉस्पेक्टिव जो भी अभी मार्केट में जो यंग ब्लड आ रहा है, उनके पास से हम रैविट में या कोई और मॉडल में 3D मॉडल में हमारे पास सबमिशन हो जाए, उसका भी हम लोग स्क्रूटनी करें, और उसका भी आउटपुट हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल करके दे दे। तो ये मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, हमारा एप्लीकेशन कैपेबल है ये 3D मॉडल स्क्रूटनी करने के लिए। तो हम लेकिन हमारे पास प्रोफेशनल की तरफ से ऐसे ड्राइंग नहीं आ रहे। अगर कोई प्रोफेशनल हमारे पास ये सबमिशन करना चाहता है, तो वो करे, और इसका भी स्क्रूटनी हम लोग करें, तो ये ड्राइंग जो है एंड यूज़र के लिए, कस्टमर्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और ये वर्ल्ड में हमने कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है, इसमें हमारा मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी है। वो भी ये जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाए, ताकि सबका ही भला होएगा इसमें। यस, थैंक यू। आपने ये सॉफ्टवेयर तो पूरा प्रिपेयर कर लिया, बट देखा जाए तो जो भी अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो काफ़ी एज्ड होते हैं, और वो टेक्नोलॉजी के इतने फ्रेंडली भी नहीं होते। तो एक ये हो गया कि उन सबको ये कैसे यूज़ कराया, और दूसरा कि ये आपने इतने सारे लोगों तक कैसे पहुंचाया। तो इनिशियल वो स्टार्ट करने से पहले का भी एक इतिहास है कि हमें जो रेजिस्टेंस इनिशियली जो शुरू हो गया, तो हम लोगों ने पहले ऑनलाइन किया, तो जो भी कंट्रीब्यूटर्स थे या जो भी प्रोफेशनल्स थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो भी ओल्ड एज थे, टेक्नो सेवी नहीं थे, तो उधर से ही इनिशिएशन शुरू हो गया रेजिस्टेंस का। और इसके साथ साथ विद इन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी जो हमारे ऑफिशियल्स काम कर रहे थे, उनमें से भी रेजिस्टेंस था। तो वो इनको कम्युनिकेशन कैसा हो जाए, और कैसा था कि अगर हम टेक्निक नहीं है और हमें नहीं आएगा, तो फिर वो हमें टेन्योर नहीं मिलेगा। तो इसका भी एक डर लोगों के, हमारे ऑफिशियल्स में था, और साथ में साथ जो प्रोफेशनल थे उनको भी ये डर था कि अरे यार मेरे को नहीं आएगा तो मेरे को क्लाइंट नहीं मिलेंगे। तो वो भी एक उनका ये था। तो ये दोनों जगह पे डर था। तो इसको हम लोगों ने ऐसे एलिमिनेट किया कि इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके मैनुअल्स निकाले, हमने वीडियो क्लिप्स निकाले, हमने सेमिनार्स अरेंज किए। जो शुरू में ऐसा काफ़ी सारा रेजिस्टेंस आ रहा था, तो हम लोग पूछ रहे थे कि यार कौन हमको ये हेल्प करेगा। तो तभी वो राजन बांदेलकर थे, वो नारेडको के मेंबर्स थे। तो उन्होंने एक बार उनके सामने मैंने एक मेंशन किया कि यार ऐसा कोई हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए, हम लोग लोगों तक पहुँचे, हम कंट्रीब्यूटर तक पहुँचे। तो उन्होंने पहला एक सेमिनार अरेंज करने में हेल्प की थी। यशवंतराव चौहान एक ऑडिटोरियम था,
मंत्रालय के सामने, तो वहाँ पे अरेंज करके दे दिया। तो तभी पहली बार हम लोगों मास लेवल पे लोगों को इंटरेक्ट करने लगे। तो उनको हमने सेमिनार में समझाया प्रेजेंटेशन थ्रू, फिर वहाँ पे स्टॉल्स लगाए हमने, उधर उनको समझाया। फिर ये सेमिनार का सिलसिला चलता रहा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी सेमिनार लेते थे और कंट्रीब्यूटर के साथ में भी सेमिनार लेते थे और उसके वीडियो क्लिप्स भी बनाते थे और हर एक के साथ रेगुलर मीटिंग हुआ करता था। जैसे कमिश्नर के पास मीटिंग हुआ करता था और जैसे हमारे देन चीफ इंजीनियर थे, चितोरे साहब थे, अभी दराड़े सर थे, तो ये सब ने काफ़ी सारा इनपुट तभी दे दिया और काफ़ी सारा चैनलाइज करने में बहुत ही किया। और इससे सबसे ज़्यादा जो हेल्प था वो जो देन कमिश्नर थे अजय मेहता सर, तो उन्होंने इतना हमें एक करवाया ना, हमसे ये करवाया, तो ये इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने बोला कि एज इज़ बनाओ, एज इज़ के बाद में टू बी बनाओ। एज इज़ में हम लोगों ने जो हमारे प्रोसीजर्स थे, जो लॉ का बेस नहीं था उसको, या लीगल सपोर्ट कोई भी नहीं था, और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते थे। जैसे कि असेसमेंट की एनओसी तुम लेके आओ इसके पास से, या तो एरिया स्टेटमेंट्स तुम दे दो किसी प्रोफेशनल के पास से। सेल्फ सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे यहाँ पे। सीवेज के, ड्रेनेज के जो एनओसीज थे अथॉरिटी के पास से ही लेके आओ। तो काफ़ी सारा जो बर्डन था हम लोगों ने अथॉरिटी के ऊपर रखा था। तो अथॉरिटी के ऊपर रखने से हुआ ऐसा कि हर एक चीज़ में अथॉरिटी के पास आना पड़ता था। तो हमने कुछ चीज़ें के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दिया, कुछ चीज़ें के लिए हम लोगों ने थर्ड पार्टी को इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे कि फायर कंसल्टेंट है, जैसे कि प्लम्बिंग कंसल्टेंट है, जो इन लोगों को हमने थर्ड पार्टी को ये किया, उनको रजिस्टर करवाया हमारे पास से और उनको हमने एम्पावर कर दिया, उनके सर्टिफिकेशन को हमने अपील कर दिया, हमने वैलिड कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या हो गया कि अथॉरिटी के ऊपर जो आने वाला लोड है वो कम हो गया। जैसे डीपी रिमार्क ऑनलाइन कर दिया, तो ये मतलब लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को एंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो लोगों को एकदम ये हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसे कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी था, तो उनका एनओसी लेना पड़ता था। एयरपोर्ट अथॉरिटी का था, उनका एनओसी लेना पड़ता था, कितने हाइट मिलेगी वहाँ पे। तो इनके सर्वर के साथ हमने इंटरेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि आप सबमिशन करो एयरपोर्ट अथॉरिटी के सर्वर के साथ, रात में एक बार सर्विस चलती है, रात को इंटरेक्ट कर लेते हैं और उनके पास से उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो परमिसेबल हाइट कितनी है उधर की है, उधर से हमको पता चलता है। जैसे कि आप सबमिशन करो तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के ऑर्बिट में आता है या नहीं आता है, इन्फ्लुएंस जोन में आता है या नहीं आता है, तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ही हमें पता करती है। तो उनके सर्वर के साथ हमने इंटरेक्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि बीच में के जो प्रोसीजर्स थे, बीच में का जो इंटरेक्शन था वो एलिमिनेट हो गया। तो ये एलिमिनेट हो गया तो ऑटोमेटिकली टाइम सेव हो गया, प्रोसीजर सेव हो गई और लोगों का कॉस्ट भी कम हो गया। तो इससे जो बीच वाला जो ये चीज़ थी वो सब ठीक है। और जो पुराने वाले फाइल्स थे, जैसे कि वो 15/5/2015 से हमने अप्रूवल प्रोसेस कर दिया, तो उसके पहले वाले जो फाइल्स थे वो फाइल्स भी हमने स्कैन करके वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिए। तो वो भी लोगों को कभी ज़रूरत पड़ती है, अर्लियर अप्रूव्ड प्लान में कितना एरिया है टेनामेंट का, ये चीज़ें भी अवेलेबल होने से लोगों का वो अथॉरिटी के सामने जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो वो भी टाइम सेव हो गया। सो लाइक दिस, वॉट एवर द पॉसिबल रिक्वायरमेंट वो हमने अवेलेबल करके दे दिया। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है और मुश्किल जर्नी रही है, क्योंकि जब ओल्ड पीपल को टेक्नोलॉजी के साथ साथ में काम करना रहता है वो हमेशा ही एक टफ टास्क रहा है। एंड हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये करने में काफ़ी सफल रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो काफ़ी सारे हमें हेल्प मिली है। हम मुझे एक लगता है कि एक टाइम ऐसा था कि हर वीक में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये रिव्यू लिया करते थे। तो हमें दिल्ली बुलाते थे, या तो ये वो लोग यहाँ पे आते थे। यहाँ पे एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट था, तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमें इंटरेक्ट करता है, हमारे पास से अपडेट लेता है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का
बहुत ही अच्छा सा योगदान रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड और लैंड मैप जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये इन्होंने डायरेक्ट हमारे साथ एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। तो अभी प्रॉपर्टी कार्ड और ये इंफॉर्मेशन है वो फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, और वो फिंगर टिप्स पे क्या बोले, हम लोग ऑटो डीसीआर के साथ इंटीग्रेट किया है, तो इनको डायरेक्ट प्रॉपर्टी कार्ड हमारे सिस्टम में मिल जाता है। तो ये चीज़ इंफॉर्मेशन है जो इजीली अवेलेबल बन गई है। अपना डिस्कशन ईओडीबी और ऑटो डीसीआर से म्युनिसिपल टेनेंटेड प्लॉट्स और लीज प्लॉट्स और उनकी जो एनओसी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हुए, और जो ये भी पहले ऑफलाइन हुआ करता था मेन, अपन ने वो डिजिटलाइज अब कर दिया है, और उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप उसके बारे में बता सकते हैं? यस, इसमें भी ऐसा है कि जो जो डिपार्टमेंट्स है उनके एनओसीज लगते हैं, जैसे कि रोड डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, सीवरेज डिपार्टमेंट है, और इनके एनओसीज लगते थे। जब कभी कोई लैंड पार्सल मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बिलोंग करता है, जैसे कि लीज प्लॉट है या टेनेंटेड प्लॉट है या स्टाफ क्वार्टर है, उसको उसमें डेवलपमेंट है, तो ये चीज़ों के लिए हर एक अथॉरिटी के पास से रिमार्क्स लेना पड़ता था। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, उनका जो डेटा है हर एक डिपार्टमेंट का, फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट का भी इनपुट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो जो इनपुट है वो इनपुट हमने सिस्टम में ले लिया है। अभी स्टेट डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो स्टेट डिपार्टमेंट में अबाउट 4,700 लीज प्लॉट है, और 3,600 टेनेंटेड प्रॉपर्टीज है, और 2-2,500 स्टाफ क्वार्टर्स है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, ईच लैंड पार्सल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया है, जीआईएस सिस्टम में। तो हर लैंड पार्सल का लोकेशन हमने मैप किया है, और उसके एसोसिएटेड जो भी डेटा है, जैसे कि ओनरशिप का डेटा है, जैसे कि एरिया का, प्लॉट एरिया का डेटा है, जैसे लीज एग्रीमेंट या लीज डीड का जो डेटा है, वो डेटा भी हमने, जो हिस्टोरिक डेटा है वो डेटा हमने स्कैन करके जीआईएस में इनकॉर्पोरेट किया है। और जो भी एनओसीज लगती है, मतलब ऑटो डीसीआर में जो भी एनओसीज लगती है, रोड की लगती है, ट्रैफिक की लगती है, या हाइड्रोलिक की लगती है, या फायर की लगती है, या स्टेट की लगती है, तो स्टेट डिपार्टमेंट पहले ऑफलाइन था, वो ऑफलाइन जाना पड़ता था, उनके रिकॉर्ड्स देखने पड़ते थे। तो अभी वो ये सब इंफॉर्मेशंस ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके आप डायरेक्ट उनके पास से रिस्पॉन्स आ जाता है। तो स्टेट डिपार्टमेंट पहले ऑफलाइन था, मैप नहीं था, तो इसमें से हर एक डिपार्टमेंट मैप किया, हर एक प्रोसीजर मैप किया, फ्रॉम सब इंजीनियर, लीज स्टाफ, उसके बाद में असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इम्प्रूवमेंट, ये पूरा के पूरा प्रोसेस फ्लो है सिस्टमाइज किया है। और जो अप्रूवल्स है ये ऑनलाइन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट रिसेंटली हुआ है। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट वाला था वो रिसेंटली हुआ है, बाकी तो काफ़ी सारा पुराना ही अवेलेबल है हमारे पास। आपने थोड़ी देर पहले टीडीआर के बारे में कहा कि आप लोग टीडीआर का भी पूरा सिस्टम ऑनलाइन कुछ लेवल तक अब लाया हुआ है, बट उसको भी आगे उस पर भी काम चालू है। आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे ऐसा होता है कि कोई लैंड पार्सल कोई रिजर्वेशन में है, या इज़ नॉट एबल टू डेवलप ड्यू टू द रिजर्वेशन, या रिजर्वेशन है और वो लैंडिंग ओवर करना पड़ता है वो लैंड पार्सल, तो उसके बदले में डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट, डीआरसी बोलते हैं उसको, वो डीआरसी हम देते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि लैंड पार्सल जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हैंड ओवर करना पड़ता है, प्रॉपर्टी कार्ड में उनका नाम चढ़ाना पड़ता है, और वो हमें सबमिशन करना पड़ता है। तो उसके बाद में हम लोग उसको डीआरसी इशू करते हैं। तो ये जो पहले ऑफलाइन प्रोसीजर हुआ करता था, अभी एप्लीकेंट को ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ता है। हमारे प्रोसेस जो है डेवलपमेंट प्लान डिपार्टमेंट की प्रोसीजर है, जैसे कि सब इंजीनियर के पास फाइल जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाता है, एग्जीक्यूटिव, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर,
चीफ इंजीनियर और म्यूनसिपल कमिश्नर, ये जो पूरा प्रोसेस फ्लो है वो इंक्लूडिंग लीगल डिपार्टमेंट प्रोसेस फ्लो, क्योंकि लैंड टाइटल का वेरिफिकेशन भी लीगल डिपार्टमेंट से हो जाता है, तो वो प्रोसीजर भी पूरा मैप किया हुआ है। और ये रहा डीआरसी सर्टिफिकेशन जो है, इनिशियली जो सबमिशन होता है, सबमिशन के बाद में हैंडिंग ओवर का प्रोसीजर होता है, फिर डीआरसी इश्यूएंस का प्रोसीजर होता है। ये पूरा के पूरा तो ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके आगे अगर यूटिलाइजेशन करना है तो यूटिलाइजेशन का भी प्रोसीजर हमारे सिस्टमाइज किया हुआ है। तो यूटिलाइजेशन जिसके पास से हमें परचेस करना है, रोड का टीडीआर परचेस करना है या रिजर्वेशन का या गार्डन का या स्लम का ये करना है, तो ये भी प्रोसीजर हमने सिस्टमाइज किया हुआ है। तो वो ही कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर यूटिलाइजेशन एंड ही विल गेट द अप्रूवल। बट इसमें जो इन बिटवीन कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि उनकी लिस्ट तो अवेलेबल है किसके किसके पास में ये टीडीआर अवेलेबल है, या डीआरसी होल्डर्स के नाम और उसके मोबाइल नंबर और मेल आईडीज़ हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, वो मिल जाते हैं। तो इसमें भी किसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है या पर्सनली इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम आगे चल के ये भी इसी को भी एज ए कम्युनिटी करके मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो इसमें होगा ऐसा कि जिसको ज़रूरत है वो तो टीडीआर ले सकता है, लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी टीडीआर परचेस के प्रोसेस में आ जाएंगे। तो ये भी हमारा आगे चल के प्लान चल रहा है। तो इसको भी हम लोग एज ए कम्युनिटी करके लेके आने के प्लान में है, हमारे कंसेप्शन में है। होप करते हुए ये भी जल्दी से जल्द हो जाए, यस फिर से सबका ही फायदा होएगा इसमें। यस यस वेरी गुड। जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रहा है, जहाँ पर हो रहा है, हर चीज़ फास्ट होते जा रही है और सबके लिए इजी होते जा रही है और बेनिफिट भी हो रहा है सबको। यस और कुछ सर? मैं एक टीडीआर के बारे में थोड़ा बोलता हूँ। टीडीआर में ऐसा है कि टीडीआर जनरेशन कहाँ पे हो रहा है और यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जीआईएस में हमने इनकॉर्पोरेट की है। तो हर एक लैंड पार्सल को आप मैप पे देख पाएंगे कि जनरेशन कौन से एरिया में हो रहा है, यूटिलाइजेशन कौन से एरिया में हो रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा कि डेवलपमेंट जो है, मतलब ओपन स्पेसेस कहाँ पे मिल रही है और रिजर्वेशंस कौन से एरिया में। जैसे वेस्टर्न साइड में देखा जाए तो काफ़ी सारे रिजर्वेशंस हैंड ओवर हो रहे हैं, उनके टीडीआर जनरेट हो रहे हैं, डीआरसी में वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उसका कंजम्पशन जो है वेस्टर्न लाइन में हो रहा है। लेकिन इसका मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा हो रही है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट डीपी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, डीपी इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, इसका हमें डे पर डे हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो इससे प्लानिंग अथॉरिटी को फ़ायदा है, अल्सो जो प्रोफेशनल डेवलपर्स है उनको भी पता चल रहा है कि लोग कहाँ प्रेफर कर रहे हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि कौन से एरिया में कितने स्क्वायर फीट के फ्लैट्स अवेलेबल हो रहे हैं और कंजम्पशन कैसा जा रहा है और डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोग आगे चल के स्टैटिस्टिकल फॉर्म में अवेलेबल करके दे देंगे लोगों को या डेवलपर को, तो उनको भी पता चले कि कौन से एरिया में कितने स्क्वायर फीट के फ्लैट बनाना चाहिए और कौन से एरिया में ज़्यादा कंजम्पशन है, लग्जरीज प्लॉट कौन से एरिया में हो रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोग अथॉरिटी एज ए अथॉरिटी लोगों को या कंट्रीब्यूटर्स को अवेलेबल करके दे रहे हैं, सो दैट वो उनके डेवलपमेंट प्लान्स उस ढंग से एग्जीक्यूट करें। आज ऑटो डीसीआर में अगर एक्सेस होता है तो डेवलपर्स को होता है और आर्किटेक्ट्स में एक लाइजनिंग आर्किटेक्ट्स के पास होता है। उसके अलावा मेजॉरिटी जो कंसल्टेंट्स हैं, आरसीसी कंसल्टेंट हो गए, एमईपी कंसल्टेंट हो गए और जितने भी तरह के कंसल्टेंट्स होंगे उनके पास एक्सेस नहीं होता है या कुछ अपलोड करने के लिए, या फिर मेजरली बाकी सारे कंसल्टेंट्स अभी तक इस पार्ट से जुड़े नहीं हैं ऑनलाइन प्रोसीजर से। तो आगे कुछ प्लानिंग है ये सारे कंसल्टेंट्स को भी ऑन बोर्ड लाने का प्लेटफॉर्म पर? यस, ये काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट आ रही है हमारे पास। बहुत से कंसल्टेंट जो ये कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट की तरफ से भी आ रहे हैं और जो लाइजनिंग आर्किटेक्ट है उनको वो भी बोला, उनसे उनकी तरफ से भी डिमांड आ रही है कि उनको मल्टीपल एक्सेस दिया जाए, या तो ये जो उसमें थोड़ा सा ईजनेस उनके लिए बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है। तो ये उनको उनकी तरफ से बहुत बार से डिमांड आ रही है।
और अकाउंटेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट कोई चीज़ अपलोड कर लेता है या लाइसेंसिंग आर्किटेक्ट कोई अपलोड कर लेता है, तो इट मीन्स ही हैज़ गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट और उसने स्क्रूटनी करके ही अपलोड किया हुआ है। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट आ रहे हैं। तो हम अथॉरिटी ऐसी सोच रही है कि जो कंसल्टेंट्स है उनको भी सिस्टम में लेके आए। जैसे कि हम लोग रजिस्टर तो करते हैं उनको, कंसल्टेंट को, और उनको हम लोग रेगुलरली रिन्यू भी करते हैं उनके लाइसेंस, बट हमें उनको सिस्टम का एक्सेस हमने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। यस, लेकिन उनको भी हम लोग कंसल्टेंट को एक्सेस देना शुरू करना चाह रहे हैं हम लोग, कि एक बार उनको दे दिया तो वो भी उनके जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आरसीसी कंसल्टेंट है, आरसीसी कंसल्टेंट तो उनके डिज़ाइन, ड्राइंग्स और उनके साइट विजिट्स की डिटेल्स वो भी अपलोड करे सिस्टम में, तो लोगों को भी पता चले कि यस कहाँ पे, क्योंकि जब वो प्रोफेशनल बंदा कोई चीज़ में इन्वॉल्व है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन पूरा के पूरा उसमें अपलोड करने की कोशिश करेगा। और ये कोई और अथॉरिटी को और प्रोफेशनल को अगर दे जाता तो वो इतना कंसर्न नहीं रहता है वो अपलोड करना करे ना करे, या करे भी तो कितना रिक्वायर है उतना ही करे। तो ये जो वैल्यू एड इंफॉर्मेशंस एंड यूज़र को मिलने वाली है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए हम लोग प्लम्बिंग कंसल्टेंट, लाइसेंस स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, फायर कंसल्टेंट, और ये इनको हम लोग एक्सेस देने का सोच रहे हैं। अगर इनको एक्सेस दिया तो एडिशनल इंफॉर्मेशंस जो सिस्टम में आ जाएंगी तो एंड यूज़र को इसका काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। ये हम लोगों ने हमारे थॉट प्रोसेस में चल रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट ये भी हो जाएगा कुछ दिन के बाद में। होपिंग ये भी जल्दी हो जाए ताकि और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और काफ़ी बेनिफिट भी होगा और काफ़ी लोगों के लिए काम इजी भी हो जाएगा। यस 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 यस। आज तक अगर किसी को 120 मीटर्स के ऊपर की बिल्डिंग बनानी है या 160 मीटर्स तक जाना है तो हाई राइज कमेटी इन्वॉल्व हो जाती है और उसका प्रोसीजर आज तक काफ़ी हद तक ऑफलाइन ही है। तो उसके लिए कुछ आगे प्लानिंग या कुछ है इसको ऑनलाइन करने के लिए? और साथ ही साथ हेरिटेज साइट्स या हेरिटेज डेवलपमेंट कुछ होता है तो उसमें भी ऑफलाइन प्रोसेस है सारा। तो क्या उसके लिए भी ऑनलाइन कुछ थॉट प्रोसेस या कुछ प्लानिंग है MCGM की तरफ से? हाई राइज कमेटी और हेरिटेज कमेटी ये दो स्टैट्यूटरी कमिटीज़ है, तो उनको भी हमने सिस्टमाइज़ किया है। और जो भी हाई राइज कमेटी के लिए 120 मीटर्स के ऊपर वाले जो प्रपोजल्स है उनका जो NOC लगता है वो NOC का प्रोसेस हमने मैप किया है, सिस्टम में लेके आए हैं, लेकिन उसका प्रॉपर अवेलेबिलिटी या कम्युनिकेशन या पब्लिसाइजेशन हमारे पास से थोड़ा ये हो रहा है, तो उसको भी हम लोग ज़्यादा और करें सो दैट लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। बट इट इज़ अ ऑनलाइन प्रोसेस। जो हेरिटेज कमेटी और हाई राइज कमेटी का NOC है ये प्रोसेस पार्ट है, पूरा के पूरा ऑनलाइन है। अगर प्रोस्पेक्टिव डेवलपर्स या कंसल्टेंट प्रोफेशनल कोई अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन सिंस द पीपल्स आर मोर कन्वर्सेंट विद द ऑफलाइन प्रोसेस सो वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये माध्यम से कोई देख रहा है इनको तो मैं अपील करूँगा कि ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, आपको ऑनलाइन ही उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और हेरिटेज के लिए भी सेम ही चीज़ है? हेरिटेज और हाई राइज दोनों कमेटी ऑनलाइन अवेलेबल है, और उनका जो सबमिशन है और उनका जो अप्रूवल है वो ऑनलाइन ही अवेलेबल है। जब ये प्रोसीजर ऑनलाइन हुआ तब पेमेंट्स भी सारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं और काफ़ी सारी डिफरेंट अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व है, तो पेमेंट्स को पूरा ऑनलाइन लाने में कितना अपन आगे बढ़ चुके हैं और क्या प्रोविजंस है और कैसा प्रोसीजर्स था से अभी हो गया है? काफ़ी सारा हार्डल था इनिशियली हमें, क्योंकि अबाउट डिफरेंट अथॉरिटी के पास डिफरेंट पेमेंट का लॉजिक था और उनके पास जाना पड़ता था, उनके पास डिमांड नोट लेके आना पड़ता था, फिर पेमेंट भरना पड़ता था, भरने के बाद में वो रिसिप्ट वो अथॉरिटी को दिखाना पड़ता था। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, जैसे कि अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स है इन्वॉल्व है जिनके NOCs लगते हैं, तो उनका पेमेंट्स का ये अलग अलग लॉजिक था।
और अलग अलग रिक्वायरमेंट था। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, वो जो लॉजिक है, कैलकुलेशन का मेथडोलॉजी है, पूरा सिस्टमाइज कर दिया है, वो सिस्टम में अवेलेबल है। और पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन हमने अवेलेबल कर ले दिया। तो पेमेंट गेटवे हमारे पास NSDL का पेमेंट गेटवे है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेमेंट गेटवे है, हाल ही में हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी पेमेंट गेटवे इसमें ऐड कर दिया है, इंडिया बैंक का ऐड कर दिया है, NFT, RTGS और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इवन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आल्सो कैन बी मेड अवेलेबल, और उनके थ्रू भी हम लोग पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो ये जो मोड ऑफ पेमेंट्स है वो अवेलेबल है, डिमांड नोट सिस्टम से निकलती है और आप पेमेंट ऑनलाइन कर पाते हैं। तो ये प्रोविज़न पूरा के पूरा सिस्टमाइज कर दिया है। तो इसमें पेमेंट के बारे में, उसका डिमांड नोट के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, इवनली ऑडिट के बारे में भी, इसके बाद में जो ऑडिट होता है वो ऑडिट भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये सब इसको हमने सिस्टमाइज कर दिया है। जो पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किया करते हैं, वो हाल ही में क्या हो रहा है कि डिमांड नोट सिस्टम से निकल जाता है और एप्लीकेंट जाके दोबारा उसका चलन जनरेट करता है और स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। ये खाली पेमेंट हमारा अलग से बन गया है, लेकिन हम लोग इसको भी सिस्टमाइज कर रहे हैं। वी आर इंटरेक्टिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड वो पेमेंट भी सेम सिस्टम में एक ही जगह पे हो जाएगा, उसका भी ऑनलाइन का प्रोसीजर चल रहा है। बट बाकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन जितना भी पेमेंट है वो पूरा के पूरा ऑनलाइन है और पेमेंट गेटवे थ्रू ही होता है। इस साल के बजट में कमिश्नर सर ने कहा था कि स्टेट प्लॉट्स का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा और 10,000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेशन का एस्टिमेटेड नंबर है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसको रिवाइव करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए? बेसिकली जो स्टेट के प्लॉट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही लोगों के पास नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिव डेवलपर्स है वो यहाँ पे नहीं आ रहे, जो भी आ रहे हैं तो थ्रू जो नॉन कंसल्टेंट है उनके थ्रू ही आ रहे। तो हम जो प्लॉट्स है, स्टेट के प्लॉट्स है, वहाँ पे परमिसिबल FSI कितना है, नंबर ऑफ टेनेंट्स कितने हैं, उनका लोकेशन कहाँ पे है, उनका टोटल FSI कितना है, कितना फ्लोर का बिल्डिंग बन जाएगा, टाइप ऑफ बिल्डिंग कैसा बनेगा, रोड विड्थ कितना है, तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं थ्रू द सिस्टम लोगों को। और इसके ऊपर हमें अपेक्षा है कि ये इंफॉर्मेशन और इसके कुछ टेंडर्स निकालेंगे हम लोग, सो दैट वो ये इंफॉर्मेशन अगर लोगों के पास मिल जाएंगी तो नए डेवलपर जो है, मतलब जो अभी करंट डेवलपर जो है वो नॉन डेवलपर है या कन्वर्सन डेवलपर है, जो इसको जानते हैं, सिस्टम को जानते हैं और इसके ऊपर से रेगुलेशन को जानते हैं, ये लोग हैं। लेकिन जो ऐसे भी डेवलपर है जो इनके सिस्टम के बारे में इनको पता नहीं है, ये प्लॉट्स के बारे में या रेगुलेशंस के बारे में इनको पता नहीं है, प्रोटेक्शनल के बारे में इनको पता नहीं है, लैंड पार्सल के, तो ये हम लोगों के पास देने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ कंसल्टेंट भी इसमें कुछ अपॉइंट करके हाल ही में हमने टेंडर भी निकाला हुआ है कि ऐसे कंसल्टेंट जो है वो हमारे पॉलिसी वेरीफाई करें, रेगुलेशन वेरीफाई करें और लैंड का पोटेंशियल कितना है, कितना एक्सप्लोट होना चाहिए, उसमें कितना कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिलना चाहिए, कितना वन टाइम प्रीमियम मिलना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग वो कंसल्टेंट को थ्रू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में हम लोग इसको टेंडर वंडर निकाल के इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देंगे, सो दैट नए डेवलपर्स जो है वो आ जाएंगे और जो डेवलपमेंट है हमारे प्लॉट्स का, म्यूनसिपल प्लॉट्स का, टेनेंटेड है या स्टाफ क्वार्टर्स है या म्यूनसिपल ओन प्लॉट्स है, उसका डेवलपमेंट सिस्टमाइज मैनर में हो जाएगा। उसका काफ़ी सारा उनमें से रिवेन्यू भी हमारे पास आ जाएगा। उसके लिए भी हमारी ये अलग से कोशिश चल रही है। और ये पूरा सिंस इट इज़ वी आर मेकिंग दिस ऑल थिंग्स ऑनलाइन, सो ग्लोबल डेवलपर्स जो है वो भी इसमें आ पाएंगे। आपके क्या थॉट्स है इंडिया के मुंबई पर्टिकुलरली अप्रूवल प्रोसेसेस वर्सेस जो इंडिया के बाहर के शहरों है? अपना प्रोसीजर्स जो है वो हम दिखाने के लिए वाशिंगटन DC में गए थे, वर्ल्ड बैंक के सामने, वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे। हालांकि हमें 2-3 बार ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लोग हमारा जो अप्रूवल प्रोसेस है वो वहाँ पे जाके उनको दिखा पाए हम लोग। तो दैट टाइम हमें
जो ग्लोबल प्रोफेशनल्स है या अदर कंट्रीज़ के प्रोसीजर्स है उसके बारे में भी जानने को मिला, सुनने को मिला, इंटरेक्ट करने को मिला। तो उनका प्रोसीजर और हमारा प्रोसीजर काफ़ी वेरिएशन है, क्योंकि वहाँ पे भी हार्ड फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे भी हार्ड फॉर्म में अप्रूवल्स होता है, वहाँ पे भी टाइम रिक्वायर्ड मोर देन अस है। वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो खाली स्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट में लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस कमी होने के कारण, मतलब हम लोग ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग लोगों तक नहीं पहुँच रहे, तो इसमें थोड़ा सा कमी है। बाकी ग्लोबल प्रैक्टिस के हिसाब से ही हमारा डेवलपमेंट है। हमारा अप्रूवल प्रोसेस जो है वो एकदम नेशनल लेवल का ही, वर्ल्ड क्लास लेवल का ही है। इसलिए तो मतलब हांगकांग के कंपेरेटिव, चाइना के इसके बाकी के कंट्रीज़ के कंपेरेटिव हम लोग देखा जाए, हाल ही में कुछ साल पहले दुबई का डेलीगेशन आया था हमारे पास हमारा अप्रूवल प्रोसेस देखने के लिए। तो उन्होंने देखने के बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने बताया हमको कि आपका प्रोसीजर तो काफ़ी अच्छा है, मतलब हमारे उनसे काफ़ी अच्छा है, और वो हमारा देख के उनके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब रियली हम बहुत ही आगे चले हुए हैं, बहुत ही आगे हैं और अप्रूवल प्रोसेस में। और ट्रांसपेरेंसी भी हमारी, इतना ट्रांसपेरेंसी किसी के पास नहीं है, क्योंकि कमिश्नर आज कोई अप्रूवल इशू करता है, द मोमेंट ही डिजिटली साइन इट, इट्स अवेलेबल टू द पब्लिक एट लार्ज, तो इमीडिएटली वो अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, जो रेगुलेशन, स्क्रूटिनी करने का रेगुलेशन जो है वो हमारा है, वो काफ़ी अच्छा रेगुलेशन है। और फायर का जो रिक्वायरमेंट है हमारा और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो भी काफ़ी रिमार्केबल है अदर कंट्रीज़ के कंपेरेटिव। तो यस, हम लोग काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी स्टूडियस है, और जो भी रिक्वायर्ड वर्ल्ड क्लास नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी रिक्वायरमेंट हमारा रेगुलेशन फुलफिल करता है, हमारा नोटिफिकेशन फुलफिल करता है। और जब भी कोई अमेंडमेंट हो जाता है, वर्ल्ड क्लास में रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो वो हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर लेती है और हम लोग उस ढंग से डेवलपमेंट कर लेते हैं। सो काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट है इसमें। आज भी अपने जो अप्रूवल प्रोसेसेस है, कुछ चीज़ें ऑफलाइन होती है, बट जब कोविड का पीरियड आ गया था तब तो इंटरेक्शन सभी का ज़ीरो पर आ गया था। तो तब अप्रूवल्स कैसे हो रहे थे? हमने खाली की शुरुआत की 2015 से, 15/5/2015 से, लेकिन कोविड पीरियड में हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि हर ऑफिशियल्स, हर प्रोफेशनल्स, हर कंसल्टेंट, ये सब रिमोटली अपने अपने घर पे बैठे थे। लेकिन अप्रूवल प्रोसेस तो रुका नहीं था, क्योंकि लेबर साइट पे थे तो काम तो करना था, कुछ जगह पे इंटरनल वर्क है वो भी तो करना था, अप्रूवल भी देना था। तो इसके बारे में आपको बताया हम लोग कि जो मैक्सिमम परमिशंस हमने दिए हैं कोविड पीरियड में दिए हैं, और पूरा के पूरा ऑनलाइन। जैसे कि मानसून परमिशंस थे, मानसून शेड के परमिशन है, मानसून कवरिंग का परमिशंस है, ये तो हमने काफ़ी सारा, उनके लेबर के इंफॉर्मेशंस है, कोविड में जो भी लेबर्स थे उनके बारे में भी कुछ इनपुट हमें बोला गया था, ये भी उसमें अपलोड किया जाए। उनके जो व्हीकल्स है उनको परमिशन देना था, जो इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, वो व्हीकल को परमिशन देना था यूज़ करने के लिए, वो भी हमने ऑनलाइन किया। तो ये अथॉरिटी तो डिफरेंट अप्रूवल्स तो देते थे कंस्ट्रक्शन परमिशन रिलेटेड, बट अदर जो परमिशंस थे वो परमिशंस भी हमने ऑनलाइन देना शुरू कर दिया। तो इसमें कोविड पीरियड में हमें काफ़ी सारा ये मिला कि हम लोग डायरेक्ट कुछ डेवलपमेंट भी हमने, शॉर्ट डेवलपमेंट हमने हमारे एप्लीकेशन में कर दिए, और ये भी इम्प्लीमेंट हो गया। इसका बहुत सारा अच्छा रिजल्ट हमें मिला है कोविड पीरियड में। काफ़ी सारे परमिशंस हमने कोविड पीरियड में। देखा जाए तो ऑप्शन नहीं था, तो उसकी वजह से पूरा अपना सिस्टम को बूस्ट मिल गया और काम भी काफ़ी जल्दी हो गया, और शायद अपग्रेड भी शायद काफ़ी ज़्यादा स्पीडी वे में हो गया होगा कंपेयर टू अगर कोविड नहीं होता तो। यस, तो कोविड पीरियड में हमने सेमिनार्स भी कोविड पीरियड में काफ़ी सारे ऑनलाइन लिए, लोगों को भी समझा दिया हमने। जैसे हम लोग डेवलपमेंट किया करते थे सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग कम्युनिकेट भी करते थे थ्रू द सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार, एंड लोगों का भी काफ़ी सारा ये रहा, मतलब
मुंबई के डेवलपर्स और प्रोफेशनल को काफ़ी सारा हेड्स ऑफ है, क्योंकि ये लोग इतने प्रोएक्टिव है। हमें पूछा करते हैं, हमारे पास आ जाते थे, हमारे साथ हम अगर थोड़ा कोई रिफॉर्म्स लाते हैं और उसका पब्लिसाइजेशन कम हो गया तो वो खुद वॉलंटरली हमारे साथ आके, वो नारेडको है, एमसीएच है, पीएटा है, बहुत ही एक्टिव लोग है ये। तो ये लोगों ने हमको कोविड पीरियड में और अदर पीरियड में भी ये रादर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में हमें काफ़ी सारा सपोर्ट किया है, तो इस वजह से हम लोगों तक पहुंच पाए और कोविड पीरियड में काफ़ी अच्छा हमारा इंटरेक्शन रहा। अब सेल्फ डेवलपमेंट काफ़ी बूस्ट हो रहा है, जहाँ पर नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक है, वो पार्टिसिपेशन, उनका जो पार्टिसिपेशन जो पूरे प्रोसेस में होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। नॉर्मली अगर डेवलपर कर रहा है तो उसे तो पूरा प्रोसेस पता है, वो एक्सपीरियंस्ड होता है, तो वो सारा काम कर लेता है, उसको पता है कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। बट सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोविज़न किया जा रहा है जिससे पब्लिक को काफ़ी बेनिफिट होगा, जिनके लिए उनके लिए काफ़ी ईज़ हो जाएगा सारा प्रोसेस करने के लिए? ये नॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस और सेल्फ डेवलपमेंट, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, इसलिए किया कि सेल्फ डेवलपमेंट काफ़ी सारा ये एक्टिविटी को प्रमोट करना, ये अथॉरिटी ने या ये हमारे डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी बोला था कि इनको काफ़ी हद पर लोगों तक पहुंचाए। तो इसलिए हमने एक टैब आइकन प्रोवाइड किया है हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब पेज में ही, एक आइकॉन दिया है सबमिशन के टाइम पे। तो जैसे ही वो सेल्फ डेवलपमेंट का टैब क्लिक कर लेता है तो डायरेक्ट फाइल वो अथॉरिटी के पास चली जाती है और काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स अवेलेबल है सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, एडिशनल एफएसआई रहेगा या स्क्रूटनी मॉडल में चेंजेस है, तो ये सेल्फ डेवलपमेंट आइकन अब जब क्लिक हो जाता है तब उस ढंग से ये इंफॉर्मेशन वो अप्रूवल प्रोसेस के फ्लो में वो चला जाता है। तो इसके स्पेशल प्रोविज़न हमने सिस्टम में की है सो दैट टू गेट द अप्रूवल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और विदाउट एनी चेंजेस, और जो भी बेनिफिट्स है, अवेलेबल बेनिफिट है, वो बेनिफिट उनको मिल जाए। जैसे कि फीस में बेनिफिट्स है, एफएसआई में बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट सब सिस्टमाइज कर दिया है और सिस्टम में अवेलेबल है। आज जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है जिसके वजह से काफ़ी पोल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है, जैसे दिल्ली में काफ़ी स्मॉग हो चुका है, बॉम्बे में भी काफ़ी टाइम पहले बढ़ गया था स्मॉग, जो इसका मेन रीज़न कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी था, और ग्रीन बिल्डिंग कोड्स लाए जा रहे हैं जिससे काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट सेफ हो जाए, ग्लोबली बेनिफिट हो। इसके लिए क्या प्रोविज़न किया गया है? यस, हाल ही में उसमें पोल्यूशन के बारे में काफ़ी सारा अवेयरनेस लोगों में है, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है वो मैक्सिमम पोल्यूशन जनरेट कर रहा है ऐसा बोला जा रहा है। तो उसके लिए हमने काफ़ी सारे प्रोविजंस किए, जैसे कि यहाँ से जो डंप होने वाला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो वो कहाँ से डंप हो रहा है, कहाँ उसको लोकेट किया जा रहा है, कहाँ डिस्पोज ऑफ हो रहा है, उसका जनरेशन कहाँ हो रहा है, डिस्पोज ऑफ कहाँ हो रहा है, उसके लिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो एनओसीज है या उसके जो रिकॉर्ड्स है, उसके बारे में हमने जो भी ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे डंप कर सकते हैं उसको हमने जीआईएस पे मैप किया है, वो सिस्टमाइज किया है, उसका एनओसी का प्रोसीजर भी ऑनलाइन किया है हमने, और कहाँ से जनरेट हो रहा है, कौन से साइट पे कितना क्यूबिक मीटर जनरेट हो रहा है। अच्छा, जो जहाँ पे जनरेट हो रहा है वहाँ पे जो इन्वायरमेंट के नॉर्म्स है, जैसे कि 6-7 मीटर तक आपको कवरिंग करना है साइट को, तो वो किया है या नहीं किया है। जैसे ही व्हीकल्स इन आउट हो जाते हैं तो उसमें उनके टायर्स को लग के जो भी मक आता है उसको क्लीन किया है या नहीं किया है, उसके बारे में क्या है। तुम्हारा साइट में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका इन्वायरमेंट लेवल क्या है, तो कितना जनरेट हो रहा है, उसको मैपिंग करने का भी प्रोविज़न सिस्टमाइज किया है, और उसका वीडियो क्लिपिंग अपलोडिंग प्रोविज़न भी किया है, सो दैट हम लोग पूरा के पूरा इनको ध्यान दें। और इसका जो एक्सकेवेशन का परमिशन है जो कलेक्टर ऑफिस से इशू होता है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, उनका सुपरवाइजिंग मॉडल भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो भी लोग यहाँ पे आके वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई कर लेते, आइडेंटिफाई कर लेते कहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, और उसको इससे जो डिटरेंस पैदा हो रहा है, इससे रिफॉर्म से
अवेयरनेस पैदा हो रहा है डेवलपर में, तो ये काफ़ी अच्छा है और इससे काफ़ी सारा लेवल जो है इन्वायरमेंट का इम्प्रूव हो रहा है। आपने हाल ही देखा होगा कि हर एक जगह पे इन्वायरमेंट का लेवल, जो पहले पोल्यूशन का लेवल था पहले काफ़ी सारा था, ये भी कम होते जा रहा है। तो इसका बहुत सारे इफ़ेक्ट हमने जो प्रोविजंस किए हुए इम्प्लीमेंट किए हुए उसका इफ़ेक्ट्स अपने को देखने को मिल रहा है। जो यंग प्रोफेशनल्स है या फिर जो सेकंड जनरेशन वाले हैं जो अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंटर कर रहे हैं, डेवलपर हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? हमने अभी तक जो डेवलपमेंट किया है, ये डेवलपमेंट यंगर जनरेशन को टारगेट में रख के या सामने रख के ही हमने किया है, क्योंकि अर्लियर जो जनरेशन था उनमें पेशेंस थे, उनमें नॉलेज भी, हिस्टोरिक नॉलेज भी था काफ़ी सारा, और परसेप्शन भी था आगे का क्या होने वाला ही है। तो यंगर जनरेशन जो एआई रिलेटेड है, उनको मेरे ख्याल से हाल ही में इतना पेशेंस नहीं रहेगा, उनको हिस्टोरिक नॉलेज भी इतना नहीं, क्योंकि एआई बेस है तो सब अगर सिस्टमाइज हो गया है तो सिस्टम उसका केयर लेगा, मुझे तो खाली डेवलपमेंट करना है। तो इनपुट और आउटपुट ही इतना ही कुछ अपेक्षा करेंगे ये यंगर जनरेशन। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपील करूँगा यंगर जनरेशन को कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो एप्लीकेशन है, वो आप स्क्रूपलसली स्टडी करें। उसमें जितने भी लैक्यूनाज है, जितने भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो हमें आइडेंटिफाई करके हमें बताएं। और हम चाहे कि हमारे एप्लीकेशन में जितना भी मॉडिफिकेशन करें हम लोग, तो यंगर जनरेशन का थॉट्स है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, इसमें ऐड करें। और हम कभी ऐसे भी चाह रहे हैं कि हम जो कॉलेजेस है, जो आर्किटेक्चर कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे जाके भी लेक्चर करें, उनको बताएं, उनको भी एक आधा प्रोजेक्ट में ये थीसिस ऐड करना को बोले कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हाउ द अप्रूवल्स आर गिवन, सो दैट ये हो जाए तो उनको नए जनरेशन को भी पता चले और उनकी रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और एडवांस करने के लिए उनके पास से कोई थॉट्स आ रहे हैं तो वो भी हम लोग इम्प्लीमेंट करें। तो यंगर जनरेशन जितने भी है ये माध्यम से कुछ देख रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे इनको देखें, हमारे एप्लीकेशन को देखें और हमारी प्रोसीजर्स को देखें और हमें एडवाइस करें कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, और वी विल बी वेरी हैप्पी to implement those changes in our application so that it will be easily user friendly available to the younger generation. थैंक यू सो मच संजय सर। आज आपने काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज एक्सेसिबल की है और काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई है, और जो टेक्नोलॉजी से जो ईजीनेस आने वाली है और आ गई है ऑलरेडी, इससे हम लोगों का, स्पेशली यंगर जनरेशन का काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. You have given me opportunity to brief all these things, and hopefully younger generations and जो ongoing generations है जिनको पता नहीं है ये एप्लीकेशन के बारे में, या कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं या कुछ एडिशनल रिफॉर्म्स है, वो उनको तो पहुँचे, वो हमारे साथ इंटरेक्ट करे। तो ये आपने मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दिया टू पब्लिसाइज दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस।